क्या है? आज के इस इवेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने एक्साइटेड आज की शाम को लेकर? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दैट आई बीन एबल टू मेक इट। पहले यही मुश्किल हो रहा था कि मैं यहाँ पे पहुँच पाऊँ, लेकिन आई एम ग्लैड सुबह से बाहर निकला हूँ, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम हियर। एंड पीस इनिशिएटिव है, पीस वॉक है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। एनजीओ के कुछ बच्चे हैं जिनके साथ हम वॉक करने वाले हैं। सो इट्स अ नाइस कॉज एंड एक बहुत अच्छा दिन है जहाँ हम लोग अपने जो शहीद हुए हैं 26/11 के लोग, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे पुलिस वाले, होटल के स्टाफ, लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने उस दिन जान दी ताकि टेररिस्ट कुछ ज़्यादा ना कर पाएँ, बट बहुत कुछ फिर भी उन्होंने कर दिया। तो एक वही है सोच जो हम लोग हमेशा याद हर साल करने की कोशिश करते हैं। इतने साल हो भी गए हैं, बट उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। उनके ये जो बलिदान है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स नाइस दैट हम लोग कम से कम कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो बिग बॉस के बाद आप बाहर आए तो कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? 500,000 के नोट बंद हुए तो आपको कुछ दिक्कतें आई कि आपको? टचवुड बॉस की जर्नी जर्नी कोई इतना इफेक्ट मुझे हुआ नहीं, बिकॉज निशा थी एंड वैसे भी हमारा जो भी होता है ज़्यादातर वाइट ही होता है, ऐसा कुछ ब्लैक का होता ही नहीं है। सो उसका मुझे कोई असर नहीं पड़ा, बट आई एम बस यही सोच रहा हूँ कि बाकी घर वालों को कुछ पता नहीं है तो उन्हें कैसे पता चलेगा। बट इट्स अ नाइस इनिशिएटिव जो पीएम ने लिया है एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू कल चेंज। आपकी एनिवर्सरी थी, कुछ क्या गिफ्ट दिया आपने? अरे गिफ्ट तो मैं देने लायक ही नहीं कुछ रहा अभी। मतलब उन्होंने ऐसा गिफ्ट दे दिया सरप्राइज़ कि उसके आगे तो मेरा गिफ्ट ही फीका पड़ गया। बट इट वाज अ लवली सरप्राइज दैट निशा गेव मी। आपके अनुसार सर टॉप कॉम्पिटिटर कौन है बिग बॉस में अभी? यार अब तो कुछ पता नहीं है, आज 4 लोग तो अंदर घुस रहे हैं मैंने सुना है। एंड आई थिंक जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जल्द से जल्द वापस आ जाएं, मुझे लगता है तभी बेटर रहेगा। थैंक यू Thank you. हर संत कहे साधु
huge round of applause, ladies and gentlemen, Mrs. Amrita Hall. I request Mr. Jain and Professor Dr. Uday sir to please felicitate Mrs. Fatmis, and thank you, ma'am, for actually being here. Thank you, please. And a small token of appreciation from our end. On this moment, I'd also like to invite Mr. Kul Kripla, a compassionate humanitarian and a phenomenal philanthropist, to come up on stage, ladies and gentlemen. A huge round of applause for Mr. Kul Kripla. And last but not least, I'd like to call Ms. Archana Kochar. Couture Archana Kochar has been showcasing her collection on national and international runways. She's designed for the Peace collection today in this hall. A huge round of applause for the lady who's got all the stars dancing and dressing for her dance. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for the special guest. Thank you, everyone. And now we have Mrs. Fatmis with her, okay, and the other dignitaries as well, to please light the ceremonial lamp. Thank you. Still. Thank you. I'd request the dignitaries to be on the stage to get back on their seats. Mrs. Fatmis, will you please tell us, share with a few words with us? Respected dignitaries, Dr. Saruki, Director of Wellington Institute, Ambassador Mr. Thoran Hussain of Iceland, District Governor Mr. Gopal Andhaniya Rotary, Chairman of Global Peace Initiative Mr. Kul Kriplani, thank you so for having me today. Archana Kochar, thanks for this lovely dress which I wore today. Other dignitaries and dynamic students who have organized this meaningful event, and my dear friends. I am indeed happy to associate myself with the biggest celebration of peace in the world, Global Peace Initiative, organized the Phoenix Spirit to retain peace, a very important moral for attainment of happiness and harmony in human society. It is commendable that One Life Alliances has been organizing this award since last 4 years and had eminent personalities like Rajshri Birla ji, Sunil Gavaskar ji and Sania Mirza in the past. I congratulate the V School for being knowledge and venue partners for this great initiative. The Nigerian human rights, civil rights, democracy activist Hasta Abiola says about peace that peace comes from being able to contribute the best that we have and all that we are towards creating a world that supports everyone. But it is also securing the space for others to contribute their best and what they have at their best. The attainment of this peace has always been a desire of human society in all periods of history and at all levels among different nations. Considering the fact that development of society is impossible without preservation of peace, all the members of international community, including United Nations and specialized agencies, several global and national level human rights movements have been consistently and strongly advocating the promotion of peace against war. It's the need of the hour that international objectives must be set by all countries. Defend peace against increasing terrorism by terrorist organizations and other agencies, disturbing harmony of the human society. Currently, the attack
attempts being made by various nations to defend peace to include people and goods, creation and knowledge across the globe, encouragement of development of socio-cultural relations among different cultures and so on. People have begun focusing their attention on the need for protection of human rights, protection of environment and securing of real and meaningful international integration. However, several negative factors like ethnic conflicts, ethnic violence, ethnic wars, terrorism, in its several dimensions, keep on acting as big hindrance towards the same. Over the last several years, forces that want to spread turmoil and fear have made this war an important part of our daily life, so much that we no longer find it all to hope that a normal working day passes peacefully. It's our honor that you're here today. Thank you. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Mrs. Amrita Fadnavis. And now it's time for us to actually start the award ceremony. A huge round of applause. Ma'am, can you please say a few words? Thank you. I count on this as a really great honor and also a reminder that we have a lot of work to do. When you look at the world around you, there aren't just instances of massive violence, but there's also a lot of microaggression. Think about how you can spread peace in every little thing you do in your everyday life, and you could make the world around you a more peaceful place. Thank you. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, our second awardee is from the world's most peaceful nation. नहीं वो नहीं, इससे रिलेटेड चल रोल इसी से रिलेटेड इससे रिलेटेड रोल ओके यस अमृता जी हम सब यहाँ पे 2 minutes, only 2 questions. ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप भी यहाँ पे प्रेजेंट, हमने देखा है बहुत ब्यूटीफुल स्पीच दी आपने। क्या अपील करते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत अच्छा इनिशिएटिव है। ग्लोबल पीस एक ग्लोबल कंसर्न है और ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से जो लोग पीस की तरफ लोगों को खुश करने के लिए, शांति लाने के लिए छोटे और बड़े काम करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे काम करने के लिए। और जो ऑडियंस है और जो लोग ये सब देखते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। एंड 26/11 में जो भी शहीद हुए उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगी? हमारे जो जवान बॉर्डर पर जो रक्षा करते हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगी आप अपनी तरफ से? मैं यही मैसेज दूंगी कि इन्हीं की वजह से आज हम हैं। आज जो हमारा अस्तित्व है ये इन्हीं की वजह से है, इन जवानों की वजह से। और जिन लोगों जो लोग शहीद हुए 26/11 में, उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि और हम सब मिलके इस टेररिज्म का नाश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि। थैंक यू मैम। यहाँ पर अभी आएंगे।
शाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे 26 यार ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के लिए वॉक कर रहे हैं यार, एज इन इसमें हर एज इन वॉक ऑफ लाइफ से एक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हों, क्रिकेटर्स हों, बिजनेसमैन हों, एवरीवन वॉक टुगेदर फॉर पीस। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये वन लाइफ अलायंस इनिशिएट किया है जिन्होंने, और मिस्टर रतन टाटा ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव यार, वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड गौतम, जो 26/11 अटैक पे जो हमारे जवान शहीद हुए और जो बॉर्डर पे अभी भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे गौतम आप अपनी तरफ से? कहूँगा यार कि थैंक यू, आप हमेशा हमें सेफ रखते हैं और हम जैसे आप हमारे लिए खड़े हैं, हम भी हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। थैंक यू। क्या कर रही है सर? रुक, विजुअल ले। हम सभी यहाँ पे ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके पर हमने एक ब्यूटीफुल फैशन शो रैंप वॉक करते हुए आपको देखा। क्या फील करती हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आप आज की शाम के बारे में? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है ग्लोबल पीस वॉक ने, क्योंकि अहिंसा की बहुत ज़रूरत है अभी हमें। तो ये अर्चना कोचर ने भी बहुत ही एक अच्छा चीज़ किया कि अहिंसा सिल्क, जो कि बिना वो वो लार्वा को बिना मारे उनको पहले ही वो रिलीज़ कर देते ताकि सिल्क एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो नहीं मरते, उनकी जान बच जाती है। तो ऐसे अगर टेक्सटाइल्स हमारे दुनिया में आते रहेंगे तो आई थिंक एनिमल क्रूअल्टी और भी घटता रहेगा। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड क्या विश करना चाहेंगे पीस की जो 26/11 अटैक पे जो जवान शहीद और हमारे बॉर्डर पे जो अभी भी हमारे लिए रक्षा करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, लड़ाइयाँ झगड़े और ये जो है ना एकदम अहिंसा के हित है, तो उसके लिए आई थिंक हम सभी को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे NGOs बहुत सारे हमारे इंडिया में हैं, तो जैसे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि सारे सेलिब्रिटीज़ एक जगह पे वॉक करें। क्यों करें? क्योंकि हम सब सपोर्टिव है, एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब जब एक जगह पे एकजुट होकर सपोर्ट करें तो द ग्लोबली सोशल मीडिया में जिसका रीच है, लोगों को लगेगा कि हाँ चलिए हम भी इनका साथ देते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। और सेलिब्रिटीज़ कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इस तरह का इनिशिएटिव लोगों आई के सामने थिंक लाने में? फंड रेजर्स जो होता है, जहाँ पे आप अपनी चहेते सेलिब्रिटी को वॉक करके देखते हैं, लोग आते हैं और काफ़ी सारे लोग डोनेशंस डालते हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रिटी, एनी ह्यूमन बीइंग कैन टेक एन इनिशिएटिव। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी अ सेलिब्रिटी टू डू समथिंग लाइक दैट, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन। तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो देन यू कैन बिगिन फ्रॉम एनीवेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुभाष, हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके पर। हमने एक ब्यूटीफुल रैंप वॉक देखा एक इनिशिएटिव के लिए। आप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या फील करते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? सुधांशु, मुझे यहाँ पे आके इस कॉज से जुड़ के बहुत गर्व है इस बात का कि मैं ऐसे कॉज के साथ जुड़ा हूँ, और ये किसी की ज़िंदगी के बहुत ही एक डार्क चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। और उस इंसिडेंट जो एक हमारी हिस्ट्री का, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर होगा, उसकी वजह से किसी ने ये सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ऐसे कॉज के साथ जुड़ने में हमेशा बड़ा गर्व महसूस होता है और अच्छा लगता है कि हम ऐसे कॉज के साथ जुड़ें। और हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम लोग अर्चना कोचर जी के कपड़े पहन के रैंप पे वॉक कर रहे हैं और इस वजह को, इस कॉज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। एंड सुधांशु, आपकी तरफ से क्या विश करेंगे जो 26/11 अटैक पे जो हमारे जवान शहीद हुए और जो बॉर्डर पर हमारे लिए रक्षा करते हैं, उनके लिए क्या विश करेंगे आप? क्या पीस होगा आपकी तरफ? देखिए, मेरे लिए हम लोग क्या है, हम लोग बहुत ही आसान ज़िंदगियाँ जीते हैं एक्चुअली, और तो कुछ भी कहना मेरे लिए उनके लिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों में उनको प्रोत्साहित कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ एक आम जनता के हिसाब से कि मैं क्योंकि मैं फ़ौजी स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरे ज़्यादातर क्लासमेट्स आज की डेट में कर्नल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यार वो लोग जो काम करते हैं वो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते, और शायद उनकी उस पोजीशन की वजह से, उनकी उस जज्बे की वजह से हम लोग
आज यहाँ पे इतना सुरक्षित माहौल में ये सब कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और वहाँ पे उनकी ज़िंदगी रोज़ हर मिनट हर सेकंड दांव पे लगी होती है। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा कि दे आर नेक्स्ट टू गॉड फॉर अस, एंड मे गॉड कीप देम ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू सो मच। अरे बीच छूट जाएगा यार, मैं बीच की वजह से ऐसे खड़ा हूँ, बीच की वजह से ऐसे खड़ा हूँ। थैंक यू ब्रदर। कैमरा नीचे कर दो, अभी बहुत नीचे कुछ गिरेगा अंदर। पैसे गिरेंगे, काले पैसे, काला धन गिरेगा, काला धन गिरेगा वो, इसीलिए चलो आग लगा दी थी इसने तब यार। ओ अभी मालूम पड़ा क्यों। नहीं झाड़ू लगाई थी। चलिए अगर हम सभी प्रेजेंट हैं यहाँ आई वांट द ब्रांडिंग। परफेक्ट। Which is the branding? V? नहीं ओके गौरव, हाँ जी। सभी यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके पर, आप भी यहाँ पर हैं, हमने एक ब्यूटीफुल रैंप वॉक देखा, आप क्या कहना चाहिए, क्या फील कर रहे हैं आप आज के इस मौके पर? मुझे पहले तो ये लगा कि इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, कॉज बहुत अच्छा है टू प्रमोट पीस, एंड आई थिंक पीस हर जगह पे होना चाहिए, और पीस घर से शुरू होकर पड़ोसी के यहाँ तक, प्लस द वर्ल्ड शुड बी पीसफुल। तो कॉज बहुत अच्छा है एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। आई थिंक इट वाज वेरी वेल डन। जो पुराने दोस्त मिले हैं जिनके साथ मैं काफ़ी काम भी कर चुका हूँ, सो ओवरऑल इट वाज अ हैप्पी थिंग। एंड आपकी तरफ से क्या विश जाएगा जो 26/11 अटैक पे जो हमारे जवान शहीद हुए और जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं? सी मैं मैसेज क्या कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि पीसफुल रहे सब कुछ, और ऐसी हर चीज़ें ना हो बेटर। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बट वर्किंग टुवर्ड्स पीस एंड प्रमोटिंग पीस, आई थिंक एक एज एन एक्टर आपको अच्छा मौका मिल जाता है टू टॉक अबाउट इट। तो खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संस्कृति हाँ तो ये लोग ले रहे हो हाथ से क्यों नहीं दिख नहीं रही। थैंक यू। हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव जैसे कॉज के लिए हमने एक अच्छा सा रैंप वॉक देखा आप लोगों के जरिए, क्या फील करते हैं और क्या कहना चाहिए आपकी शाम के बारे में इस इनिशिएटिव के बारे में? अच्छा जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पर आया था, एंड ऐसे इनिशिएटिव के लिए आई थिंक हर एक नागरिक को बहुत ज़रूरत है कि दे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पीस, नॉट जस्ट इन इंडियन, इन फैक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे इनिशिएटिव के लिए आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू कम फॉरवर्ड। और जो मैंने टाइटल जीता है मिस्टर वर्ल्ड, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्यूटी विद पर्पस, जो कॉज है उसको आगे बढ़ाना। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट कायला हैज़ टेकन द इनिशिएटिव एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड, एंड आई होप कि जहाँ पर भी हम जाते जो भी करते हैं हमें ऐसी चीज़ को स्प्रेड करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। एंड जैसे से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, वी ऑलवेज हैव टू हैव पीस इन क्वेस्ट। 26/11 है जो आपको क्या मैसेज हमारे जवानों को जो शहीद हुए हैं उनके लिए? आई थिंक मैं यही चाहता हूँ कि दे आर द पीपल हु आर लिविंग फॉर अस, एंड वी हैव टू कंप्लीट गिव ऑल आवर ग्रैटिट्यूड टू देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिमेंबर देम एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, एंड हैट्स ऑफ टू देम फॉर डूइंग इट, फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। I would just say that I've been a part of Global Peace Initiative so many times and all the time, and I always work for charity. But it's even more fun to be walking ahead with other celebrities and wearing the best of outfits and looking good. And special mention to Rohit Khandelwal. He has made the country proud. And Thank you. I did see his journey on camera and on screen and on internet. He was breaking the internet. So I just want to wish you all the very, very best for your future endeavors. And yes, it's great to meet him this year. Thank you. Thank you Same so here. much and wish you all the best. Thank you. One cut please. Thank you so much. चलो रोल है। ओके, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के बारे में, किस
तरफ से जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है उस बारे में क्या कहेंगे? वेरी वेरी नाइस इनिशिएटिव ग्लोबल पीस जो वॉक है, और लास्ट ईयर भी मैंने किया था, और क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कॉज के लिए है और हम सबका इनफैक्ट ये आई थिंक ये फ़र्ज़ बनता है कि इस इनिशिएटिव में हिस्सा बनना, इसका पार्ट बनना अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। इट्स एन ऑनर। सो लास्ट ईयर भी मैं इसका पार्ट बनी थी, दिस ईयर भी। सो आई थिंक आने वाले जितने साल तक ये चलेगा, आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस। सेलिब्रिटी कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इस तरह के इनिशिएटिव लोगों तक पहुँचाने के लिए? यस, सेलिब्रिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन होते हैं बाकी कॉमन पीपल के लिए जो वो उनको फॉलो करते हैं। तो आई थिंक सेलिब्रिटीज़ को तो खुद से आगे आना ही चाहिए। इनफैक्ट सब आगे आते ही हैं इनफैक्ट इतने अच्छे कॉज के लिए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि वो जो करते हैं उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो भी वही करें। इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहेंगे जो 26/11 में जो शहीद हो गया उनकी फैमिली को, और जो हमारे जवान अभी भी लड़ रहे हैं बॉर्डर के लिए? यस, मैसेज यही है कि हमारी तो बहुत ज़्यादा विशेज़ और प्रेयर्स उनके साथ हमेशा रहती हैं, और मैं तो ये बोलूँगी कि आई रियली सल्यूट देम। उनके जो है इतने बड़े, मैं बोलूँगी कि जैसे इतना बड़ा ये उनके ऊपर जो भी ट्रेजेडी आती है तो उसे फेस करना बहुत बड़ी बात है। सो बस, लेकिन हम सब आपके साथ हैं और हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। बस कभी भी ऐसा ना सोचें कि आप अकेले हैं, कभी भी आवाज़ एक लगाए तो हम ज़रूर आगे आएंगे। थैंक यू सुगंधा। यहाँ पर कॉमन हो रहा है, वहाँ पे आप आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। ये साइड, वो साइड, आप वहाँ पे आ जाओ। ओके चलो, क्योंकि हम सभी यहाँ पे ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके पर प्रेजेंट है, हमने एक अच्छा सा फैशन शो भी देखा आपके जरिए। क्या फील करते हैं? सबसे पहले तो मैं वही उसी पे आना चाहूँगा कि मैं पहली बार किसी ऐसे एक इवेंट का हिस्सा बनाऊँ, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे इवेंट का हिस्सा हूँ, क्योंकि ये जो है ये एक तरह से हम एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, फॉर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, द सिविलियंस, द कॉप्स, द आर्मी, एवरीबडी एल्स, एंड आई थिंक दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू टू पे ट्रिब्यूट टू देम, and as actors, as artists, it's our job, and to just be a part of this this event, and I'm really honored, to be honest. मैसेज यही है कि हर साल हम याद करते हैं उनको, उनकी जो कुर्बानी है वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी, और जो चला गया वो तो ऑफ कोर्स वापस नहीं आ सकता, बट what we can do is we can pray for them. Maybe they're at a better place right now, and they're happy wherever they are. Their families, I hope, are happy, and moving forward, I hope the current government, whatever they're doing, works against terrorism, which we can see it is already in certain ways, and let's hope for the best. Thank you. Thank you. So much. Thank you. Okay, वही तो करके आ रहा था यहाँ पे भी ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके मी नहीं दिख रहा है ना, तो हाँ अच्छा अच्छा मैडम बोल रही है, मैडम बोली, मैं नहीं बोला। ओके, ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, कि हमने एक परफॉर्मेंस देखी, रैंप वॉक देखा। क्या कहना चाहिए, क्या फील करते हैं इस इनिशिएटिव में? बहुत शुक्रगुजार हूँ वी ग्रुप का, वी स्कूल का, वेलिंकर्स का, और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट सिर्फ यही कहता है लोगों को, हम सबको, कि साथ में रहें, मिलजुल के रहें। वी हैव टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखनी है, और जो टेररिज्म है, जो समाज की कुप्रथाएं हैं, उनको जो है वो जड़ से ख़त्म करना है। और सब लोग मिलके आज इतनी बड़ी तादाद में बॉलीवुड, पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, दूसरी पता नहीं कितनी कंट्रीज से यहाँ पे लोग आए हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, और दे ऑल वांट वन थिंग, दैट इज़ पीस, ग्लोबल पीस। एंड उन लोगों को क्या विश करेंगे जो 26/11 अटैक में जो शहीद हुए या जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, और हम यहाँ पर शांति से अपने बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ उनको कि हम सब बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हैं। ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि हम आभारी हैं, हम शुक्रगुजार हैं, वी आर थैंकफुल, बट हम कभी भी उसका कर्ज अदा नहीं चुका पाएंगे।
जितने शहीदों की जितने जवानों की शहीदी होती है, जितने लोग वहाँ मरते हैं, जितने लोग वहाँ अपना सब कुछ खो देते हैं, तो उनके लिए उनकी जो सरफरोशी है वो ज़ाया ना जाए, वो वेस्ट ना जाए। तो उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सबको, हम सब इंडियंस को, कि अरे बाइट हो रहा है कलाकारों का, तुम सर इजाज़त है तो गाऊँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम दे देंगे। चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा। हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा, सरफरोशों ने लहू दे के जिसे सींचा है, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचा लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। तो सरफरोशी की जो शमा है हमारे दिलों में हमेशा जगती रहनी चाहिए, ताकि जितने भी बलिदान हुए वो कभी ज़ाया ना जाए। थैंक यू। हाँ जा रहे हैं।
ओके दैट्स इट दिस ओके ओके चलिए मनीष, हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके पे हमने देखा एक ब्यूटीफुल फैशन शो भी देखा हमने आपको। क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करते हैं आप इस इनिशिएटिव को लेकर? यार आई थिंक देखिए फंबल करवा रहा तू मेरे, रुक जा। देखिए जहाँ तक ये मौके की बात है, आई थिंक यहाँ पे हम सब एक साथ हैं 26/11। आई थिंक ये एक ऐसा दिन रहा है जो बहुत ही पेनफुल रहा है हम सब के लिए, और ये दिन हम भूल नहीं सकते। और आई थिंक इसके लिए यहाँ पे आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड पीस के लिए। सो यस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मनीष का आउटफिट भी कहीं ना कहीं जो है 26/11 को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे अपने आउटफिट के बारे में? यार आई थिंक एक इंडियन वेयर है, तो आई थिंक एक हिंदुस्तानी है हम लोग, तो आई थिंक उसके लिए जनरली मैं हमेशा सूट्स में होता हूँ, तो आज मौका मिला है यहाँ पे ये पहनने का, और ये अर्चना ने डिज़ाइन किया, तो यार अच्छा लग रहा है पहन के। आई थिंक रैम्प वॉक करना कंफर्टेबल है, मज़ा आता है। ऑब्वियसली मैं वैसे तो बहुत शोज़ वगैरह करता हूँ, फिल्म्स करता हूँ, लेकिन एक नर्वसनेस हमेशा रहती है, तो आज भी वो थोड़ी सी थी, बट ठीक है, अच्छा है, लोगों को अच्छा लगे। Really, am I? That's news. Thanks. Yeah. So we've been hearing this that you are the highest paid TV host on Indian television. Mm-hmm. So what do you have to say on to those reports? See यार, I don't honestly talk about money. मैं पैसे के लिए काम करता ही नहीं हूँ, मैंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। जब मेरे पास पैसे थे, नहीं थे, हैं, उसका पता नहीं। मैं क्रिएटिविटी के लिए काम करता हूँ, और पैसे जो है वो मेरी टीम मैनेज करती है। सो आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट यार। मनीष, इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे 26/11 में शहीद हो गए और जो अभी बॉर्डर? यार उनको तो आई थिंक उनको और उनके परिवार वालों को बहुत बहुत सलाम है हम सबका। आई थिंक उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, आई थिंक वो हम उसको हम कभी भूल नहीं सकते, और उनका जो इसके अंदर जो जाने गई हैं, हम उसको बस सलाम कर सकते हैं, और उनके लिए बहुत बहुत नमन करते हैं। आई थिंक उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू है, और इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं, और ये दिन हम कभी भूलने नहीं वाले हैं, और कभी भूलने देंगे नहीं किसी को, और हमेशा याद रखेंगे, और यही चाहते हैं कि वर्ल्ड पीस रहे, और आगे से ऐसी कभी दुर्घटना ना। भारत बंद है, आपका क्या कहना है? किसने कहा बंद है? कह रहे हैं पार्टी की तरफ से आया है अच्छा, कि भारत बंद है, तो कैसे करेंगे, मतलब ताला लगाएंगे? ठीक है, कर रहे हैं, उनकी मर्जी, वो करना चाहे करें, मैं तो घूमने निकलूंगा कहीं ना कहीं जैसे कि देखा जाए कि पीस डे है, कल पीस डे मनाया जा रहा है। यार वर्ल्ड पीस है, हम तो पीस की बातें कर रहे हैं, तुम भारत बंद की बातें कर रहे हैं। सो मच नॉइजेस आर रेजिंग, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन को लेकर हो, या फिर जो ऑडियंस है बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही है, जी, तो व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट? यार आई थिंक सबको बड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। अगर एक देश में बदलाव के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्टेप लिया है, मेरे हिसाब से हम सबको उनका साथ देकर आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए, रादर देन कोई खामियां निकालें। मेरे ख्याल से कोई खामी निकालनी नहीं चाहिए। अगर काला धन रोकने की बात है तो आई थिंक मैं तो बिल्कुल उनके साथ हूँ, और मैं अपने लिए डिसाइड करता हूँ, मैं लोगों के लिए डिसाइड नहीं करता। आई थिंक ये सब अपना डिसाइड खुद कर सकते हैं। मैंने ये डिसाइड किया है, मैं बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, और अगर उन्होंने कहा है काला धन बंद होना चाहिए, 1000 के नोट 500 के नोट बंद होने चाहिए, तो बिल्कुल आई एम टोटली विद हिम। यार कोई ऐसी दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत डेफिनेटली आ रही है। आई थिंक अगर कोई भी बदलाव आता है, आप भी जब 14 साल के थे, उससे 15 के हुए होंगे, आपकी आवाज़ फटी होगी, फिर भारी हुई होगी, उसी तरह एक बदलाव आता है तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, तुम समझते हो। तो आई थिंक अगर एक चेंज आ रहा है, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक लेट्स ऑल बी टुगेदर यार। लेकिन आपको कुछ दिक्कत आई क्या? नहीं यार, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आराम से अपनी गाड़ी में बैठा, जो मेरे नोट थे मैंने बैंक में जाके चेंज करवा लिए, थोड़े ATM से निकाले, थोड़े तुम्हारी जेब से निकाल लूँगा, और घर चला जाऊँगा। यार I've started shooting performances in television shows like Chaan Chupa Badal Mein and Ye Hai Aashiki, a trained singer, the ever charming and melodic Neha Sargam. Malinger, keep clapping for the celebrities. Come on everyone, show some love. Use your applause once again for Neha Sargam. Miss Diva Universe 2016,
She has represented India in Miss Universe pageant. The extremely photogenic and super sexy Rashmita Harimurthy. Come on, Wellington, show some love for the Global Peace Initiative. Huge round of applause once again for Rashmita Harimurthy. Alright, actor of popular web series, pictures, film Suleimani Kira, and various critically acclaimed short films, the very handsome David Kasturia wishes you peace. Huge round of applause once again for David Kasturia. Actress, writer, singer with multiple films and sound. She is loved for her performance in popular television show Be-Inteha, The Gorgeous, Kritika Rao. Come on everyone, are you having a good time? A round of applause once again for Kritika Rao. With his enchanting words, from Nazar Ke Samne to Dagabaaz Re, he has spent over 3,600 songs in Hindi. The legend lyricist, Sameer Anjan. Huge round of applause once again for Sameer Anjan. When it comes to finding talent and casting in temples, who better than the amazingly talented casting director who has casted for films like Chilla Party, Gangs of Wasseypur, Kai Poche, and many more. The talent finder, Mukesh Chabra. Give it up once again for Mukesh Chabra. We'll be hoping to watch the movie Dangal in theaters very soon. Model, a fitness enthusiast, the young Suman from Ek Duje Ke Waste, the ever smiling and lovely Nikita Datta. Come on, Wellington,
super talented, and a lively host, presenter, the celebrity chef, Harpal Singh, walks the peace. Huge round of applause once again for Harpal Singh. The man behind the beloved television shows Sarabhai vs. Sarabhai, Khichdi, Maa Bahu Aur Baby, actor producer, a phenomenal creator and ideator, J.D. Majetia wishes you peace. Come on, ladies and show some love. Huge round of applause once again for Jenny Majetia. Humor is her play. Stage is her ground. She has made people laugh at the most trivial as well as the most serious happenings. Super talented and witty, Aditi Mittal. Give it up once again for Aditi Mittal. The cute and not so little cutie pie of the digital world and television, the extremely hilarious and superstar, Honorable Chutki wishes you peace. Come on, ladies, let's show some love for Tom Mera and Chutki. Huge round of applause for Chutki. She has made thousands of people fall in love with her character. Tapki, one of the most darling characters of television, is a beautiful Jigyasa Singh. Huge round of applause once again for Jigyasa Singh. Number one television show right now in India. She has a strong audiences with her performance as Shesha in Dage, known for her roles in shows like Tehne, Amrit Manthan, and a part of varied reality shows. Beautiful and stunning, Ada Khan. Why you have to get that into the next noise for Ada Khan.
Victoria, an eminent designer. She has designed the piece collection for today's event. Ladies and gentlemen, put your hands together for the gorgeous Archana Kochhar. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आज के एक्सपीरियंस में सबसे स्पेशल था कि ये एक पीस वॉक है और मैंने एक पीस सिल्क अहिंसा सिल्क की कलेक्शन लॉन्च की। मैं कुछ समय से बहुत एक आर्टिसन ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ और हम पीस सिल्क बना रहे हैं, सिल्क विदाउट किलिंग अ सिंगल सिल्क वर्म। सो व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट वी लॉन्च दैट कलेक्शन एंड इट गोज़ वेरी वेल विद द थीम ऑफ द डे। राइट, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? इस पीस वॉक के लिए जो कपड़े तैयार करने थे, क्या थीम यूज़ किया आपने और क्या कुछ नया यूज़ किया? वही जो था, हमने यही पीस सिल्क की थीम यूज़ की कि हम सिल्क वैसा यूज़ करें जो पीस सिल्क है, अहिंसा सिल्क है, जिसमें सिल्क वर्म को मारे बगैर बना जाता है। तो हम जब पीस वॉक की बात कर रहे हैं तो हमारा सिल्क ऐसा होना चाहिए कि उसमें सिल्क वर्म तो वही हमने एक थीम यूज़ की। और मेहनत तो हो ही जाती है, जब हमने 40 सेलिब्रिटीज़ को ड्रेसअप करना है तो मेहनत तो पूरी हो जाती है, बट इट वॉज़ रियली नाइस। जी जी ओके बोलो। हेलो हेलो, कैसे आप? मैं तो हैंडसम सबसे पहले तो आज के इस इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहेंगे। हमने देखा एक ब्यूटीफुल रैंप वॉक देखा, एक पीस कलेक्शन में हमने देखा, क्या फील करते हैं आप, क्या कहना चाहिए? It's a very good cause and I have been a part of this show earlier also, and it's such a warm welcome you get over here, and you get to wear such nice clothes made by Archana, and matlab when you get a warm welcome, you feel good about it, and also whenever I get a chance to that I can contribute to such cause, I am always there, and ऊपर से लोग अच्छे हैं, so you feel all the more good. So please ask her कि कितनी सच्ची वाला बताओ कि मुश्किल होती है 40 सेलिब्रिटीज़ सबके नखरे, प्लीज़ टेल। पूरी मेहनत हो जाती है, जेन्युइनली हो जाती है, एकदम सही आपने बोला। No, but she still tries to and she is very good at this. She manages and she takes care that कि सब लोग खुश हैं, everyone is happy when what they're wearing, and they go back smilingly. So yeah, that's good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. चलो रोले। ओके, सो ग्लोबल पीस इनिशिएटिव इतने अच्छे कॉज के लिए हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप जो हमें देखिए बहुत ही अच्छा रैंप वॉक देखा, क्या फील करती हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आज की शादी के बारे में? मैं बस यही कहूँगी कि ऑफ कोर्स रैंप वॉक तो बढ़िया रहा है, बट इस रैंप वॉक की ख़ास बात यही है कि जब मैंने वो बच्चे का हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पर जो एक खुशी देखी है, आई थिंक दैट्स जस्ट मेड माई इवनिंग, एंड दैट जस्ट सम्स अप द होल पर्पस ऑफ दिस इवेंट। एंड आपके इस अटायर के बारे में जानना चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अटायर ऑफ कोर्स अर्चना हैज़ डन अ वेरी ब्यूटीफुल जॉब विद व्हाट आई एम वेयरिंग। एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेल दिया है उसने मुझे इस ड्रेस के ऊपर, एंड जैसा मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत एक प्रिंसेस लाइक फीलिंग हो रही है इसमें। Any message you would like to give to our jawans and Well, I would just say, since I myself I come from an army background, so मैं बस यही कहूँगी कि it's difficult for people to understand, but what you guys do, I wouldn't include myself, but what you guys do is commendable, and nobody can even imagine that. Thank you for that. Thank you. Thank you. so much. आप वहाँ कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन कर रहे हैं ना, तो आपको हो गया ना, और भी सारे लोगों को हम लेके आएंगे ना, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे थैंक यू। वो एक गाउन था, क्या था, कुछ ग्रीन कलर का कुछ तो था, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। अरे मैं भी ग्रीन हूँ। चलो रोले। अरे प्लीज यार फ्रेमिंग दिखाओ। फ्रेम जरा दिखा। See this one. Oh God, okay.
ओके कृतिका, तो सबसे पहले तो हम सभी यहाँ पे एक कृतिका हम सभी यहाँ पे एक इतने ब्यूटीफुल कॉज के लिए सभी यहाँ पे प्रेजेंट है जी। और आप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्यूटीफुल हमने कॉज रैंप वॉक भी देखा, क्या फील करते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बिकॉज रैंप वॉक्स तो कई किए हैं बट ये बहुत गुड कॉज के लिए है। एंड जैसे मैंने काफ़ी मीडिया में बाइट्स दिए कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो एज अ शो स्टॉपर उन्होंने रैंप वॉक किया है, हु हैव लॉस्ट मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली इन 26/11 विच इज़ रियली सैड। उनका दर्द जो है वो ही जानते हैं जिन्होंने किसी को खोया है। एंड आई थिंक दे हैव मेड पीस द गोल ऑफ देयर लाइफ, यू नो, उनकी ज़िंदगी का मकसद बनाया है टू प्रमोट पीस। एंड if I can be a part of it in some way and walk a ramp like this and create awareness and, you know, promote peace, I really feel blessed and privileged. एंड आपके इस ब्यूटीफुल अटायर के बारे में भी जानना चाहेंगे। अटायर खूबसूरत लग रहा है। अटायर फिर से अर्चना कोचर। And you want to see the outfit, you can see the outfit, but it's थोड़ा सा गॉथिक टच है इस बार। एंड I've gone heavy on my look, जो मैं कभी बहुत ही नो मेकअप लुक प्रेफर करती हूँ, बट आई हैव गॉन हेवी ऑन माई मेकअप दिस टाइम। I hope the fans like it, and I can see a lot of people waving, and I recognize all of them waiting for me. Any message you would like to give to जो 26/11 पे शहीद हुए और जो बॉर्डर पर जो है हमारी रक्षा करते हैं? बहुत मुझे दुख होता है उनके फैमिली के लिए। एट द सेम टाइम गर्व भी महसूस होता है कि जो वो कर रहे हैं वो कितने लोग करेंगे। यू नो कितने लोगों में वो साहस है, वो हिम्मत है कि वो आगे बढ़े और वहाँ जाकर उस स्थिति में रहे। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड I wish there's a time where there are countries without any borders and, you know, without people guarding the borders, but I think I'm very idealistic in that way. Yeah. Thank you. One second. मैम बुलेट इधर आ जाए इधर हो गया। ओके जी, क्या सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या फील करते हैं आप इस इनिशिएटिव को लेकर जो कि ग्लोबल पीस है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सेकंड टाइम आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड। सेकंड टाइम आई एम हियर टू सपोर्ट दिस कॉज। और मुझे ऐसा लगता है उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सका जब 26/11 का अटैक हुआ था, तो आई थिंक डिले कभी भी नहीं है। आज अगर हम अगर मैं इस कॉज को सपोर्ट करके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ तो आई एम हैप्पी। इसके अलावा आपके आउटफिट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं इस कॉज को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे? या दिस इज़ अ वेरी प्लेन एलिगेंट एंड सिंपल आउटफिट। अर्चना कोचर मैम ने डिज़ाइन किया है ये। आई एम वेयरिंग माई फेवरेट कलर। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे जवान हैं और जो अभी भी बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। अब मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी बिकॉज़ बहुत ही बड़ी चीज़ है ये अपने पूरे घर वालों को छोड़कर। बिकॉज़ मैं अगर अपने बारे में ऐसा कुछ सोचती हूँ कि मुझे करना पड़े तो समवन शुड हैव लॉट्स ऑफ गट्स टू डू दैट। तो जस्ट बीइंग थैंकफुल। एंड एक आखिरी सवाल की जो आपके जो सीरियल है आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है, लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं आपके शो को, आपकी एक्टिंग को, आपके इस किरदार को लेकर, तो क्या फील करती जब फैन इतना प्यार देते हैं और इतने सब? आई एम वेरी हैप्पी। इनिशियली मुझे थोड़ा बहुत डर था कि जब मैं वानी ओबरॉय के कैरेक्टर में आई थी थपकी से हटकर, तो डर था कि पीपल विल एक्सेप्ट दैट और नॉट, बट थपकी से भी ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया वानी को। एंड आई फील जब थपकी वापस आएगी तो आप उसी तरह उसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमने अपने 500 एपिसोड्स पूरे किए हैं, सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। सो मैं थपकी बन पाई आज। थैंक यू। थैंक यू।
अदा सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मौके पे हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमने एक ब्यूटीफुल रैंप वॉक भी देखा। आपको क्या फील करती हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? आज की शाम जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही नोबल कॉज के लिए है ये फॉर ग्लोबल पीस। और आप सब जानते हैं कि 26/11 को क्या हुआ था और जो कुछ भी हुआ था, हम जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को लूज़ किया है, हम वो वैक्यूम कभी नहीं भर सकते। जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है, मतलब हम सबको बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ है और कोई नहीं भूल सकता वो इंसिडेंट। इसलिए आज ये जो इनिशिएटिव है, इट्स टू प्रमोट ग्लोबल पीस कि प्लीज़ लिव एंड लेट लिव और प्रमोट लव, प्रमोट हैप्पीनेस, जियो और जीने दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दुनिया में जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए एज एन एक्टर आज मैं अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कर सकती थी मैंने किया। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ सबको कि प्लीज़ जियो और जीने दो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। एंड आपके इस ब्यूटीफुल अटायर के बारे में भी जानना चाहेंगे। जो ये जो ड्रेस है ये अर्चना कोचर ने डिज़ाइन किया है। सो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सटल है, ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ किए गए हैं बिकॉज वी ऑल प्रमोट पीस। सो इसलिए बहुत ही सुंदर सा आउटफिट एंड बहुत ही एंजलिक लुक दिया है बिकॉज सारे जो एंजल्स होते हैं वो बहुत ही पीस लविंग होते हैं। अदा इसके अलावा ऑन लाइटर नोट आपके शो को काफ़ी लोगों ने अभी भी पसंद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील करती है जब ऑडियंस से इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? जी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं नागिन 2 को एंड हम सब के रोल्स को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। इट फील्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर आपके हार्डवर्क को लोग पसंद करें और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले, किसी खुशी नहीं होती है। डेफिनेटली अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। इसके अलावा हमारे जो जवान हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हम शहीद हुए 26/11 में, उनको उनकी फैमिली के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आज जो मैं यहाँ आई हूँ इसलिए आई हूँ कि मैं उन सारे जवानों को सपोर्ट कर रही हूँ, उनकी सारी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ और ये चीज़ दोबारा ना हो, बस इसकी प्रार्थना करती हूँ मैं। और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ एंड आई वुड जस्ट प्रे फॉर पीस, हैप्पीनेस और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई है, आई वुड जस्ट से मे एवरीवनस सोल रेस्ट इन पीस। अगर जब भी कोई ट्रेंड पॉपुलर होता है तो निकल पड़ता है। अभी जैसे नागिन है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन अब नागिन को लेकर कई सारी टक्करें हम देख रहे हैं, जैसे कि प्यारी नागिन हो और भी कई शोज़ आ रहे हैं नागिन को टक्कर देने के लिए। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सब मेहनत कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि उनका भी शो सुपर हिट हो या हिट हो एंड अच्छा लगता है व्हेन एवरीबडी इज़ मेकिंग एन एफर्ट और वो लोग नागिन ला रहे हैं एंड इट्स नाइस। या उनका द नागिन ओवर देयर इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी क्यूट और बहुत ही प्यारी सी है जो कॉमेडी करती है। और यहाँ पर जो नागिन है दोनों बहुत ही डिफरेंट है, इंतकाम है तो काफ़ी डिफरेंस है। वो अपना क्यूट सी है, प्यारी सी है और यहाँ पर ये दोनों नागिनें बहुत ही इंतकाम के मूड में हमेशा रहते हैं। सो इसलिए आई वुड से दैट इट्स नाइस। या आई मीन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कंपैरेटर जैसी फीलिंग आती है कभी? अच्छा लगता है, इट्स गुड टू हैव कंपटीशन एंड इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। सो जब तक कंपटीशन ना हो तो हमारे अंदर क्या कहते हैं ना वो आग नहीं रहती है कि हम और अच्छा करें। इट्स इम्पॉर्टेंट, कंपटीशन इज़ ऑलवेज हेल्दी, आई बिलीव इन दैट। ओके, जहाँ तक हम पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देयर आर सो मेनी नॉइसेस जो अभी उभर कर आ रहे हैं, जनता भी है, पैनिक हो रही है, डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पड़ रहा है। आप कितनी प्रभावित हुई इससे और आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ जो मैं देखती हूँ रोज़ सब जगह क्यूज़ होती है, सब जगह लोग परेशान हैं, किसी के पास कैश नहीं है। इनफैक्ट सब यही रो रहे हैं कि पैसे नहीं है। अगर कोई 100 भी मांग ले तो हमें लगता है कि कितनी बड़ी रकम मांग ली है, बिकॉज़ नहीं है किसी के पास। एंड आई डोंट नो कितने दिनों तक ये होगा, बट आई डोंट नो आगे इसका अंजाम क्या होगा। बट येस ऑफ कोर्स इफ़ेक्ट तो मुझे भी हुआ है। सो बट लकीली आई हैड अ बैंक अकाउंट और सबके पास जो बैंक अकाउंट है उनके लिए अच्छा है कि कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट से अपना ग्रॉसरीज़ मंगा सकते हैं, जो कि मैंने किया। बट मोर देन दैट लोगों के पास, जैसे आप जानते हैं इंडिया में काफ़ी लोगों ने बैंक अकाउंट्स नहीं खोले, उनके पास कार्ड्स नहीं है, दे डोंट नो कि सब्ज़ी कहाँ से लाए और क्या करे, विच इज़ रियली सैड। एंड आई होप जो भी हो रहा है सिचुएशन वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड आई एम जस्ट प्रेइंग कि सब लोग ये जो सफरिंग है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए एंड एवरीबडी शुड बी हैप्पी। जैसे सब इंडिया में खुश थे और
everything was settled. I think I would just hope ये सब जल्दी से settle हो जाए. जैसे अभी आपने कैशलेस ट्रांजैक्शन की आपने बातें की, आप कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने दर्शकों से ताकि वो इन चीज़ों से इन्वॉल्व हो ज़्यादा से ज़्यादा? सबको यही कहूँगी कि यस बैंक अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो आपके पास कार्ड हो जो आप यूज़ कर सकते हो. काफ़ी सारी सुविधाएं बनाई गई हैं आजकल. सो आई वुड जस्ट से हैव अ बैंक अकाउंट एंड यूज़ योर कार्ड्स इफ़ यू कैन. और बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी है जो आप यूज़ कर सकते हो. दैट्स ऑल आई वुड से. बट आई जस्ट प्रे कि ये जो असुविधा सबको हो रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.